All right, so in the last lecture, we have seen what is specific heat capacity of solids and liquids, and we have seen what is specific heat capacity of gases. हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस को दो टाइप में कैटेगराइज किया था. एक था प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, एक था मोलार स्पेसिफिक हीट. तो आज हमको विथ रिवीजन वी आल्सो हैव टू राइट डाउन दिस. So let's see what is specific heat capacity of gas. Right. तो सिर्फ चेंज यहाँ पे इतना है that while talking about gases, जब भी मैं टेम्परेचर चेंज करने की कोशिश करूंगा, I have to provide heat. और गैस में ऐसा हो सकता है कि while you are trying to change the temperature, the volume is also changing. या फिर वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड प्रेशर इज चेंजिंग, या फिर प्रेशर इज चेंजिंग, वॉल्यूम इज कांस्टेंट. So you can define specific heat capacity of gas into different types. So this is what you have to write. So in case of a gas, in case of a gas, a slight change in temperature, a slight change in its temperature you may have here like is accompanied by either change in volume, change in volume, or change in pressure. And hence, as a result of this, you have to define two types of specific heat capacities. Hence, in case of gases, we define specific heat, we define specific heat capacity at constant pressure and at constant volume. ओके, तो इसको हमने फर्दर प्रिंसिपल और मोलार में डिवाइड किया था. तो लेट्स फर्स्ट सी व्हाट इज प्रिंसिपल. ये पीएलई वाला नहीं, ये प्रिंसिपल मतलब समथिंग रिलेटेड टू इथिक्स, ये नहीं. प्रिंसिपल मतलब प्राइमरी. तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, आई यूज्ड टू गेट कंफ्यूज्ड व्हाइल इन स्कूल. मैं हमेशा ये पी ए एल को पी एल ई लिख देता था, एंड देन लाइक सेम ही तो प्रोनाउंसिएशन है, तो व्हाई शुड आई बी वरीड अबाउट स्पेलिंग. तो मतलब डिफरेंस इन द मीनिंग इज देयर. तो ये पी ए एल मतलब फर्स्ट वैल्यू, प्राइमरी जो पहला है वो, और पी एल ई मतलब समथिंग रिलेटेड टू योर इथिक्स. सो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस. तो उसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, एज यू नो, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी at constant pressure. And as we have already defined this, it is defined as the amount of heat required or released to rise or fall, मतलब to change the temperature of unit mass of gas by 1 degree Celsius or 1 Kelvin at constant pressure. So it is defined as the amount of
amount of heat required या supplied or released to change the temperature of unit mass of gas by 1 degree Celsius or 1 Kelvin at constant pressure. Right. Similarly, you can define principal specific heat at constant volume. Because I am lazy, I will just copy paste here and B at constant volume, and in the similar way it is defined as the amount of heat required or released to change the temperature of unit mass of gas by 1 degree Celsius or 1 Kelvin at constant volume. तो ये हो गया हमारा definition of principal specific heat. Just for the sake of notation, I will denote this by capital SP and this by capital SV. स्मॉल एस भी कर सकते हो, लेकिन वो नॉर्मली सॉलिड्स और लिक्विड के केस में हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पे कुछ नया नोटेशन दे दिया. ओके, देन once you have principal specific heat capacities, now you can talk about molar specific heat capacities of gases. And obviously this is something that you already know. This is the amount of heat required or released to change the temperature of 1 mole of a gas by 1 degree Celsius और 1 Kelvin. अगर आपने बोला at constant pressure तो at constant pressure, अगर आपने बोला at constant volume तो it will mean that it is molar specific heat at constant volume. तो ऐसा आप डिफाइन करोगे. तो and because again I am lazy, तो मैं वापस से वही कॉपी पेस्ट का जॉब करने वाला हूँ. I am going to just copy this क्योंकि हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, तो I don't want कि बार बार we waste our time in writing down things. Okay, good. तो सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे ये होगा, हम लोग ठीक है फर्क नहीं पड़ता, हम लोग पहले वॉल्यूम की बात कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता. इट इज नॉट लाइक कि ऐसा ही चाहिए, पहले प्रेशर की बात करो फिर वॉल्यूम की बात करो, डजंट मैटर रियली. सो आई कैन जस्ट say molar specific heat at constant volume and you denote it by CV. It is defined as the amount of heat required or released to change the temperature of 1 mole of a gas, of 1 mole of a gas, 1 mole of a gas by 1 degree Celsius or 1 Kelvin at constant volume. Done. फिर आप molar specific heat capacity at constant pressure भी
डिफाइन कर सकते हो इन द सिमिलर वे। तो नॉर्मली दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से डोंट गो बिहाइंड रटाफिकेशन। समझ गया ना लिखना। आई होप लैंग्वेज सबको आता है। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, आप सबको आता है। अगर आपको, यू आर ह्यूमंस और हम लोग नॉर्मली कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज की ही यूज करते हैं, तो यू नो लैंग्वेज, तो जो समझा है वो लिखना है, इजी। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक। अब आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन किया, आपने मतलब प्रिंसिपल और मोलर। तो what I want is, I want to know what is the relation between molar specific heat and principal specific heat। और अगर मैंने एग्जाम में पूछा तो मुझे डेरिवेशन चाहिए। टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट लिखा है मोलार स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इनटू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। मुझे नहीं चलेगा, मुझे डेरिवेशन चाहिए। क्यों चाहिए? बिकॉज याद रहेगा, नहीं तो फिर 12th तक भूल जाओगे। ये रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, आप कैपेसिटी लिखो मत लिखो चलता है, एंड मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ऑलराइट, तो इफ यू रिमेंबर ये भी कर लिया था, बट एनीवेज व्हाट वी नो इज, हमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दोनों में से कोई भी आप ले लो इफ यू वांट, एट कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हमने डिफाइन करते हुए था अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास पर डिग्री बाय 1 डिग्री। ओके, और मोलार के लिए हम लोग सिर्फ m की जगह लिखते हैं n या फिर म्यू, 1 मोल ऑफ गैस। एंड देन मैंने आपको कल बताया था 1 मोल के दो फॉर्मूलाज, एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में था, एक मास और मॉलिक्यूलर वेट के टर्म्स में था। मॉलिक्यूलर वेट तब जब गैस मॉलिक्यूलर हो, अदरवाइज जस्ट एटॉमिक वेट। तो ये आप लिखोगे Cp इज इक्वल टू, ये कैपिटल M ऊपर जाएगा, डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T। और ये जो है ये है प्रिंसिपल specific heat capacity at constant pressure। गुड। तो अभी जब आपको ये इक्वेशन डिराइव करना है तो इजी है। वी नो दैट प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी of a gas is given by, of course, at constant pressure, heat capacity of a gas at constant pressure at constant pressure is given by, और बाद में हम जनरलाइज भी कर देंगे, फिलहाल अभी कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम बोलो, बाद में we will just make a general expression। So it is given by Sp is equal to 1 by m delta Q by delta T, equation number 1। Also molar specific heat capacity is given by, molar specific heat capacity is given by, of course, at constant pressure
तो अभी मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। Cp is equal to 1 by n delta Q by delta T. Then अभी अगर आपने n यूज किया है या म्यू यूज किया तो पहले बता दो वहां पे where n is number of moles of gas, number of moles of gas which is equal to m upon capital M. फिर बताना पड़ेगा where m is mass of gas and capital M is molecular or atomic depending on the type weight. Therefore, Cp is equal to small m capital M. मैं लिखता हूँ 1 upon delta Q by delta T, and therefore Cp is equal to capital M 1 by small m delta Q by delta T. Right. So from equation number 1, so therefore Cp is equal to m times of Sp. From ये equation number 1 से लिखा हमने, क्योंकि ये 1 by m delta Q by delta T is Sp, principal specific heat capacity. Similarly, अभी ज्यादा इसको प्रूव करने के चक्कर में हम पड़ेंगे नहीं. Similarly, specific molar specific heat capacity at constant volume is molecular weight into principal specific heat capacity at constant volume. फिर हम बोलेंगे in general, फिर वो constant pressure हो या constant volume हो, in general molar specific heat is equal to molecular weight into principal specific heat. Therefore, molar specific heat is equal to weight into principal specific heat. So this is how you need to write. I want this, as I told you, you will need this kind of small formulas to solve big questions of JEE NEET. +4 और -1 for NEET. ये difference है. अगर आपको ये basic चीजें नहीं पता होगी तो you will not be able to make equations of your own. आपकी टेक्स्ट बुक में तो सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया, ऐसा हो गया, खत्म. कैसे आया पता होगा तो याद रहेगा, पता ही नहीं कैसे आया तो कितना भी रटो उसको, नो यूज. एंड दैट्स व्हाई आई से, इन फैक्ट डूइंग साइंस इज फार इजियर देन डूइंग कॉमर्स और आर्ट्स. व्हाई? उसमें कितना याद रखना पड़ता है. इस आर्टिकल में ये पॉइंट था, यहाँ पे कुछ नहीं. यू जस्ट हैव टू नो ऐसा ऐसा है, अपने आप डिराइव होता है. ओके, सो दैट इज बेसिकली रियलिटी, लेकिन डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, किसका याद रखने की कैपेसिटी ज्यादा होता है. वेल, इफ यू नो, आई डोंट नो इफ यू नो और नॉट, जितने भी अच्छे साइंटिस्ट हैं सब आलसी लोग थे. यू समटाइम यू रीड, दैट इज फैक्ट. एक साइंटिस्ट तो ऐसा था कि उसके ऑफिस में, जैसे यहाँ पे मेरे ऑफिस में बेड है, वही था. काम करेगा, सोएगा, उठेगा, काम करेगा, सोएगा. 2 hours of work, 5 hours of sleep. So this is how it works. राइट. सो ये होने के बाद अभी हमको चाहिए हीट इक्वेशन. अब हीट इक्वेशन का मतलब क्या? लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट इक्वेशन. ऑलराइट, सो हमने अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन तो कर दिया और हमने समझ भी लिया. जस्ट टू कंफर्म अगेन, अगर हमको, हमारे पास एक गैस है और उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1000 दिया है. 1000 क्या?
अगर एग्जाम में आप यूनिट्स नहीं लिखोगे ना तो हाफ मार्क काटूंगा मैं। जूल, बस जूल, ओनली जूल, दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी। एग्जैक्टली, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, राइट। तो इसका मतलब ये होता है, अगर मैं बोल रहा हूँ फॉर अ गिवन गैस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 1000 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स कि इस गैस का 1 किलोग्राम गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1000 जूल का एनर्जी लगा था, राइट। जब इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से कम होगा, अगर 1 किलोग्राम गैस का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होता है तो 1000 जूल रिलीज भी होगा। तो इसको हम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन एंड दैट बिकम्स हीट इक्वेशन। तो कैसे लिखेंगे इसको, आपने ऑलरेडी किया है ये। इफ यू रिमेंबर वी रोट S is equal to 1 by m delta Q by delta T। तो डेल्टा Q is equal to ms डेल्टा T। सिर्फ डेल्टा Q की जगह पे सिर्फ Q लिख देते हैं, that's it। और इसको बोलते हैं हीट इक्वेशन है ये, दिस इज हीट इक्वेशन, हो गया, दिस इज हीट इक्वेशन, दैट्स इट, ओके। फिर इस पे डिपेंडेंट वो एक और टर्म डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक नहीं, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी या फिर थर्मल कैपेसिटी, हीट और थर्मल कैपेसिटी। अभी नॉर्मली होता क्या है, मेरे पास एक सब्सटेंस है, आई हैव सम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हियर, मान लो कोई एक गैस है मेरे पास, मुझे इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है, ओके। और मेरे पास 1 किलोग्राम गैस नहीं है, फिर क्या करेंगे, जितना भी अमाउंट है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितना हीट लगेगा उसको बोलेंगे हीट कैपेसिटी। सिर्फ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या होता है आपने, फॉर 1 किलोग्राम ऑफ गैस, यहाँ पे कुछ नहीं है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द वोल बॉडी या फिर वोल मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया। तो ये हो गया हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। फिर आप अगर हीट इक्वेशन जानते हो तो आप बोलोगे अभी मैं m की जगह पे 1 नहीं डाल सकता, तो m तो रखना पड़ेगा, s तो एक गैस टू गैस वेरी करेगा तो उसका एक वैल्यू होगा, बट डेल्टा टी 1 है। हाँ, तो ये हो गया इक्वेशन फॉर थर्मल कैपेसिटी, तो डेल्टा टी की वैल्यू 1 डाल दी, दैट्स इट। तो दिस इज हाउ यू डिफाइन thermal capacity and how you make heat equation। तो अभी जो समझा है उसको वापस लिखो अपने लैंग्वेज में। तो अभी कैसे लिखेंगे, व्हाट वी विल से इज, सबसे पहले जो मैंने बताया एक नंबर यूज कर लेना, 1000 2000 10000 जो भी आपका फेवरेट नंबर हो लिख देना वहां पे, डजंट मैटर, बोल देना इफ अ सब्सटेंस हैज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू 1000 joule per kg per degree Celsius, it means that for to raise the temperature of this substance of 1 kilogram of this substance of this substance 1000 joule of energy is required। Similarly,
if the temperature of 1 kilogram of this substance falls by substance falls by 1 degree Celsius, then 1000 joule of energy is released. 1000 joule of energy is released. राइट, ये कुछ जो कुछ हमने लिखा है इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं. We can write this in the form of equation S. We can write this in the form of equation S. हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, but in that case we spoke about specific heat capacity. You can say heat absorbed or taken or received or given out. So heat received or given out, or I will better say heat required is a better word. Heat required or given out is equal to mass into specific heat into change in temperature. Right. So change in temperature. Therefore, you can write this as delta Q is equal to ms delta T. Equation number 1. Equation 1 is called as heat equation. डेल्टा लिखो मत लिखो डजेंट मैटर. क्यों डजेंट मैटर? हो सकता है कि पहले गैस के पास हीट था ही नहीं, हो सकता है, मतलब इनिशियल हीट वाज 0. और डेल्टा फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में नॉर्मली मतलब होता है चेंज, और चेंज फिजिक्स में जब लिखते हो तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. अगर इनिशियल 0 था तो सिर्फ फाइनल वैल्यू आ गई, और जब थी ही एक वैल्यू तो मैं क्यू क्यू फाइनल लिखूंगा, मैं बोलूंगा क्यू है. तो इसलिए डेल्टा क्यू लिखो या सिर्फ क्यू लिखो, डजेंट मैटर. ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज हीट इक्वेशन, तो फर्क नहीं पड़ता. कोई एग्जाम में मार्क्स काट ले तो समझाने का उसको ऐसा कि हाउ डज इट मेक एनी डिफरेंस. It doesn't make any difference if you are writing or not writing delta. So next thing that we defined was heat capacity or thermal capacity. तो easy है, ये तो और भी easy है. Heat capacity or thermal capacity of a body is defined as the amount of heat required to raise the temperature of whole mass, whole body मतलब by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. So heat capacity or thermal capacity is the quantity that is of a body, because ये body specific होगा, material पे depend करेगा, मतलब of a body, not the body, of a body, is the amount of heat
required to raise the temperature और change the temperature भी ठीक है, फिर required की जगह पर release बोलना पड़ेगा, इसलिए required to raise the temperature of the whole body by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. फिर हमको पता है heat equation. We know that delta Q is equal to ms delta T, but delta T is 1 degree Celsius or 1 Kelvin. Therefore, delta Q is equal to m into S. So therefore, heat capacity is equal to mass into specific heat. Mass into specific heat capacity. Done. और SI यूनिट तो आप अभी लिख ही सकते हो. SI यूनिट यू कैन राइट इट एज, सिंपल है ये आएगा आपका जूल पर डिग्री सेल्सियस. दैट्स इट. व्हाई? क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन था डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, मैंने सिर्फ इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया दोनों साइड पे, तो यहाँ से गायब हो गया. यहाँ पे है लेकिन 1 डिग्री है इसलिए लिखा नहीं. मतलब बेसिकली वो आता है जूल पर डिग्री सेल्सियस. राइट. सो ये हो गया ऐसा यूनिट्स. एंड of course you can find out dimensions. Joule is energy is mass into velocity square. m1 l2 t minus 2 upon temperature है तो k raised to 1 minus 1. तो यूनिट्स डायमेंशंस आप खुद कर लेना. Okay, so let's do few solved examples. So 7.12, a sheet of brass, मतलब बेसिकली एरिया की बात होने वाली है यहाँ पे, I hope. Okay, is 50 centimeter long and 8 centimeter broad, मतलब rectangular sheet है. If the surface area at 100 degree is 401.57 centimeter, find the coefficient of linear expansion of brass. मतलब आपको डायमेंशनली तो 2 डायमेंशनल दिया है, लेकिन जब फाइंड करने की बात बोली है तो दे आर टेलिंग यू टू फाइंड आउट व्हाट इज अल्फा linear expansion, not beta. So what is given to us in the given quantity? First, at 0 degree मतलब initial temperature 0, final temperature 100. उसके बाद आपके पास इनिशियल एरिया दिया है ना. इनिशियल एरिया कितना है? 50 इंटू 8. तो इनिशियल एरिया इज 50 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. 5 8 जा 40, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. 400 सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर स्क्वायर वाइल कन्वर्टिंग टू मीटर स्क्वायर इज 10 पावर माइनस 4, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज 10 पावर माइनस 2, उसका स्क्वायर 10 पावर माइनस 4. मतलब ये आएगा आपका 4 इंटू, जरूरत क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है. हाँ, तो फिर हम बाद में लास्ट में कन्वर्ट करते बैठेंगे इसको. A2 is equal to 401.57 centimeter square, and you are supposed to find out simple, that is alpha. फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? तो अगेन सिंपल, you will be using formula of beta. फाइंड तो करना है अल्फा, बट वी विल बी यूजिंग फॉर्मूला ऑफ बीटा. बीटा वाज AT मतलब A2 माइनस A1 अपॉन A1 T2 माइनस T1.
right? Why I'm using this? Because this is 2 alpha. Beta is 2 alpha, but beta is also A2 minus A1 upon A1 into T2 minus T1. तो ये तो हमने एक फॉर्मूला यूज कर लिया एंड दूसरा फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, अगर याद होगा, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2, राइट? तो वो हम लोग यूज करेंगे। सो सिंपल, तो कर लो फाइन। तो बेसिकली ये आ गया 2 अल्फा इज इक्वल टू A2 माइनस A1 अपॉन A1 T2 माइनस T1। तो A2 माइनस A1 ये तो 401.57 मतलब 1.57 आएगा, क्योंकि मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, करेक्ट? तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में 10 पावर माइनस 4 लिख देंगे। डिफरेंस इन द एरिया इज 1.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1.57 into 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय। नहीं भी करोगे चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है, ये फैक्टर होता है स्ट्रेन, लेंथ अपॉन लेंथ, एरिया अपॉन एरिया। तो डजंट मैटर अगर आप यूनिट्स एमकेएस में लिख रहे हो, सीजीएस में लिख रहे हो, एसआई में लिख रहे हो, मैटर रियली। तो A1 is 400 and I don't like to write as 400 for 10 power 2, and the difference in temperature is again 100, मतलब 10 power 2। तो 1/4 मैं आपको बता चुका हूँ 0.25 होता है, राइट? इंटू 1.57, या तो फिर अगर ऐसा नहीं करना तो इसको 1.56 मान लेना फैक्टर्स। 1.56 मानने से क्या होगा? वो 1 जा 3 जा 3 जा 0.3 जा, मतलब तो ये होता है ना, गड़बड़ होती है। इसलिए क्या करना चाहिए आपने, आई शुड टेल यू, लुक एट नंबर्स। ये 1.57 है ना, तो मैं इसको 15.7 इंटू 10 पावर माइनस 1 लिख दूंगा। अब ठीक है, गुड। अब आप कर सकते हो ये सॉल्व इजीली। आपको पता है रफली 4 है, बट 4 से कम है। तो 1 जा 3 जा मतलब 12, 15 में से 12 गए, 3 बचे, आखिरी में 7 था, 37, मतलब 9 रफली। अगर मैं 6 मान लेता हूँ तो 3.9 रफली, 3.9 से बड़ा ही होगा वो, 3.9 समथिंग समथिंग इंटू 10 पावर माइनस 1, और ये ऊपर जाएगा ना, तो 3.9 इंटू 10 पावर माइनस 5, दिस इज 2 अल्फा। 2 अल्फा है, और गलत है कि सही है, 10 पावर माइनस 5 ही आता है अल्फा, तो समझ में आ जाएगा आपको। तो आपको मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 3.9 का हाफ, 1.95, 1.95 इंटू 10 पावर माइनस 5 पर डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन। ओके, तो इनके आंसर में 1.962 है, हमारा 1.95 है, क्योंकि हमने न लॉग टेबल न कैलकुलेटर नथिंग। तो ऐसा आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। So this is how you can solve this. It is a very simple type of question. Then 7.13, 7.13, ये क्वेश्चन फटाफट से हमारा हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। If the temperature of 4 kg of gas, 4 kilogram of gas of a material, मतलब 4 किलोग्राम मास है, ठीक है, of a material of specific heat capacity S 300 joule per kg per degree Celsius rises from 20 to 30, मतलब delta T is 10. Find the amount of heat received, मतलब find out delta Q, मतलब heat equation use करो, that's it.
heat equation is delta Q is equal to, yes, formula is simple. Delta Q is equal to ms delta T, and then it is just multiplication 4 3 12 or 1 1200 12,000 actually, that is 12,000. 300 into 10 is 3000 into 4 is 12,000. तो ये आपका आएगा 4 into 300 into 10, तो ये आएगा आपका 12,000 joule, right? So this is how you can solve this question, and we are done for the day.